Hey friends, I hope all of you are fine. So after so long, I decided to make this video, and to make it very clear, I've got no agenda, but the things which has gone through during last recent week, it's not something we should be proud about, and this shows why our parents stop us to get into the stock market. So I'll tell you how it started. There are few gurus on the Twitter, Telegram and the YouTube. वो अपने आप को गॉड फील करते हैं. So with no controversy, what happened? So there's a trader. Usually he does option buying. So what he did on these days, उसने अपने सारे ट्रेनीज को या फिर जो भी उनके फॉलोअर्स हैं कॉल बाय करने के लिए बोला. So, which is fairly enough कि ये retracement हुआ है and maybe by taking support from this moving average, market can go there. So things are, which is okay. The problem is that he asked people to average here. Then it's here. And today he is still asking that market will revert from here. So all of you know you are option buyer. अगर यहाँ से कल 200 पॉइंट मार्केट चला भी जाता है तो what you'll get, you know that because of the time decay. So my dear friends, आप बोलोगे कि what's wrong with that? एक ट्रेड दिया था, वो ट्रेड गलत हो गया. लेकिन गलत क्या है? When you'll see the Twitter, मतलब how could you do it? जो उनके फॉलोअर्स हैं, see this. So he's Abhishek Curry. I'm sure all of you knows him. So इन्होंने एक ट्वीट करा है, मैं सबसे पहले सबको कहूँगा बाय करने, फिर कोई स्टॉप लॉस पूछेगा तो कहूँगा और बाय करो, फिर लॉस होने पर कोई पूछेगा तो कहूँगा सब कुछ छोड़ के और दूर के कॉल बाय करो, और जब मुझसे सवाल करेंगे और कोई, तो मैं उनको ट्रोल कहूँगा और कहूँगा चैलेंज करूँगा. तो यू कांट इवन इमेजिन लास्ट के 1 वीक में उनके फॉलोअर के साथ क्या हुआ है. सो दीज आर द ट्वीट. I lost approx my all money 75k during 20th and 27 September. चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लॉस्ट मनी सून ऑप्शन बाइंग में होता है. I'll show you something. Let me click on this. Let's go. Now if you'll see the retweet, see this picture. सर 2 को होम रेंट देना है और EMI भी नहीं है, you can read it. And he's showing the picture of his passbook. अब कुछ और भी है. उन्होंने चैलेंज दिया, आपको लगता है एक्सेप्ट करेगा? ये देखो, उड़ले भाई क्यों अपनी पोल खुलवा रहा है. मतलब अगर आप देखोगे ना तो यू वॉन्ट बिलीव दैट इट्स अ स्टॉक मार्केट. इसमें गलती किसकी है? एक मेरे को वो मिल नहीं रहा. आई एम जस्ट ट्राइंग टू सर्च. देयर वाज अ गाय हुज ग्रैंडफादर वाज इन ICU and he traded with that money. Now his parent is asking to get the money. Well, like, let me see if I could show you that tweet and all. There's a yeah, there's a life beyond trolling. So it's a good side thing. Yeah, see this.
So you can see the handler, मतलब what he thinks that guy, but so the, not to say like people make mistakes. So, sir, my Dadaji admitted in the hospital, lost all my money. Please help. I used for my parents' fund. Now they are asking for the money and don't know how to overcome. बॉस, अब आप इसमें किसकी गलती करो को बोलोगे? उस ट्रेनर की गलती बोलोगे या आप अपनी खुद की गलती बोलोगे? बीइंग अ ट्रेडर आई कैन टेल यू, इंट्राडे ट्रेडिंग में कई बार ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब हम पे माता आ जाती है एंड वी टेंड टू टेक रॉन्ग डिसीजंस। रॉन्ग डिसीजन आप वही लोगे ना जितने आपके ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे होंगे। सो गाइज, लेट मी मेक one thing very clear. Being an option buyer, don't consider yourself as a professional trader. It's all about gambling. The moment you understand it, it would be easier for you and you would be able to like become a professional trader. मतलब हद हो गई यार, कैसे हो सकता है ऐसा? मतलब see this kind of pictures. Just making this video so that you can understand. I'm not saying who is wrong, who is right, whether the any individual is wrong or someone else is right. My concern is being a trader. Even if God will come up in front of you and say that okay, tomorrow will be gap up, don't trust them, because market is being, there is no methodology available at this planet so that you can predict the market. It's all the game of probability. अब आप बोलोगे भाषण तो बहुत दे दिया, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है? मेरे भाई, इसका सोल्यूशन है और कोई भी नया सोल्यूशन नहीं है। The same thing all YouTubers says, all training gurus, trader, everyone says. Position size, risk management, स्टॉप लॉस नाम की एक चीज होती है, ठीक है? चलो, अब आप आए हो इस वीडियो पे तो कुछ पढ़ाई कर लेते हैं थोड़ा सा। ओके, कुछ पढ़ाई कर लेते हैं। Just bear with me and it's taking some time. No, this is not the file. I had just saved it. FinNifty chart. देखो, जब भी मार्केट क्लोज हो ना, ये स्क्रीनशॉट लेके रख लिया करो, जब भी टाइम मिले ऐसे करके देखा करो। देखना पैटर्न अपने आप को रिपीट करेगा। अब जैसे ये पैटर्न है, CPR के ऊपर नीचे मार्केट ये कर रहा है, देखना ये कहीं नहीं, CPR के ऊपर नीचे मार्केट कर रहा है। ये देखो, दो मूव आया। But this is not the file which I'm looking for. I'm sorry to take your time because क्योंकि this is an unplanned video. So KGS form 16 thumbnail, how to, yeah, this is the PPT. देखो, आप सारे रोज YouTube देखते हो और देखते हो कि निफ्टी का लेवल क्या होगा। टुडे विल लर्न हाउ टू ड्रॉ योर ओन लेवल एंड ट्रस्ट मी, एक बार आप अपने लेवल को ड्रॉ करोगे और अगले दिन मार्केट ने अगर वहाँ पे मूवमेंट दिया ना, द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस एंड प्राउड you will feel about yourself, it would be tremendous. सपोर्ट रेजिस्टेंस से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो पीपीटी पे बिना टाइम बर्बाद करते हुए हम जल्दी से क्विकली सीख लेते हैं। देखो, दो लेवल होते हैं चार्ट पे, एक होता है हिस्टोरिकल लेवल और एक होता है इंट्राडे लेवल्स। हिस्टोरिकल लेवल पे हम ट्राई करते हैं पोजिशनल बाइंग एंड सेलिंग करने की, और इंट्राडे लेवल पे हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। एंड जो भी आप ये वीडियोस देख रहे हो उसमें हम सबको मोस्टली पता है प्राइस एक्शन कैसे क्या होता है, लेकिन इट जस्ट दैट कि वी डोंट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी डोंट
ट्रस्ट आवरसेल्व्स। तो आज मैं ऐसा की पॉइंट बताऊंगा आपको कि आप अपने लेवल खुद से ड्रॉ करोगे, और वो भी कल से। चाहे आप उसके हिसाब से ट्रेड करो ना करो, ड्रॉ करके एक रात पहले रख लो और अगले दिन देखो क्या उस लेवल पे मार्केट रिएक्ट कर रही है। इन हिस्टोरिकल लेवल विल टॉक अबाउट की टर्निंग पॉइंट्स, फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल, बिग राउंड नंबर, and in intraday level it's a previous day high, previous day low, and previous day close. So let's quickly get into the chart. सबसे पहले let's delete everything which I have. So this is our, एक ना ट्रेडिंग व्यू में फ्री में होता है एक इंडिकेटर होता है वॉल्यूम प्रोफाइल। अब हमने क्या करना है, अभी सबसे पहले हमें हाई लेवल टाइम फ्रेम देखना है। तो आप चार्ट के हिस्ट्री में जाओ, पिछले एक महीने तक का देखो, एक रेंज वो कर लो। तो हमारे केस में रेंज क्या है, हमारे केस में रेंज ये है, अभी इसी बॉक्स के अंदर निफ्टी ट्रेड कर रही है काफ़ी टाइम से, एंड दिस इज अ काइंड ऑफ एम पैटर्न इन डेली टाइम फ्रेम। ठीक है, तो अब यहाँ से हम क्या करते हैं, डेली इसमें ये है, ये देखना फ्री का टूल है, यहाँ से इस रेंज में आप ड्रॉ कर लो यहाँ तक। सो दिस इज कॉल्ड वॉल्यूम प्रोफाइल, एंड दिस विल गिव यू कि ये जो रेड लाइन देख रहे हो ना, मोस्टली पिछले 2 महीने में सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हुई है इसी प्राइस पे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन खींच के रख लेंगे। यहाँ पे एक लाइन खींच के रख लेंगे, और उसके बाद फिर इसको हम ये वॉल्यूम प्रोफाइल को डिलीट कर देंगे। ये हो गया आपका हाई टाइम फ्रेम में। लेट्स गो बैक टू योर आवरली टाइम फ्रेम। जो अभी हमारे पास जो रेंज है कितना है, ये यहाँ से लेके, लेकिन अभी हम रीसेंट प्राइस एक्शन देखते हैं। जस्ट ट्राई टू डू इट फॉर लास्ट फ्यू डेज। सो यहाँ पे गैप अप और गैप डाउन है। तो अभी जो हमारे पास आर्ली टाइम फ्रेम में जो रेंज बन रहा है, ये रेंज बन रहा है ना, देख लो, एंड इट्स ऑल ऑन आर्ली टाइम फ्रेम। सो व्हाट विल डू, विल जस्ट डिलीट इट, विल ड्रॉ द वॉल्यूम प्रोफाइल हियर। और यहाँ पे ये लाइन आप खींच दो। One thing is done. Now who we are? We are intraday trader. तो अब इसको डिलीट कैसे करें यार, दिस ट्रेडिंग व्यू समटाइम, नो इट्स वेरी गुड टूल, कोई भी नहीं है ऐसा इंडिया में। ये हो गया हमारे पास। अब हमारा ट्रेडिंग टाइम फ्रेम क्या है, एनालिसिस हम करते हैं 15 मिनट्स में, और एंट्री हम करते हैं 5 मिनट्स में। सो लेट्स टेक इट फॉर 15 मिनट्स। देख लो रिएक्ट करने लगा है अभी से, हमने ऐसे ही डाला था, आपके सामने लाइव रिकॉर्डिंग है। ऐसा कुछ नहीं है, इस बार कर गया रिएक्ट, हो सकता है आगे से ना भी करे। सो देयर इज नथिंग सर्टेन इन ट्रेडिंग। सो हम क्या करते हैं, कल का देख लेते हैं कि ये आज का दिन है, तो कहाँ पे सबसे ज्यादा ट्रेड हुआ है, यहाँ इसमें। सो दिस इज द समथिंग। अब ये हो गया हमारा लाइन, एक हो गया हमारा। लेट्स गो बैक टू आर आर्ली टाइम फ्रेम। कहीं पे मुझे पॉसिबल स्विंग दिख रहा है, पॉसिबल स्विंग ये दिख रहा है जो हमारा ऑलरेडी कवर हो गया है। जस्ट टू बी ऑन सेफर साइड लेट्स चेक डेली टाइम फ्रेम। कहीं पे कुछ दिख रहा है, एक स्विंग का मतलब होता है जहां से मार्केट टर्न लेता है। सो वी हैव दिस जोन। ये देखो, ये कल यहाँ पे मार्केट नहीं करा था, उसके इसके बाद यहाँ पे गैप अप खुला था, ये कर लो। अब आप बोलोगे कितनी लाइनें खींच रहे हो, इसमें मैं ट्रेड कहाँ करूँगा। तो प्रॉब्लम इज, जरूरी थोड़े ना, जैसे देखो ये हायर टाइम फ्रेम में हमारा आया था 17,600, तो यहाँ पे थोड़ी ना कल ही मार्केट जा रही है, लेट इट बी ना। वो ड्रॉ करके रख लो कि कल कहीं ना कहीं। अब जैसे देखो हमने ये लाइन वॉल्यूम प्रोफाइल के हिसाब से ड्रॉ करा था, बस यू सी ये यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, 1 रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस, 3 रेजिस्टेंस।
अब हो गया। अब फिर से हम आ जाते हैं अपने प्यारे इंट्राडे पे। 15 मिनट्स। अब देखो प्रीवियस डे हाई हमारा ऑलरेडी कवर हो गया है इसमें, इस लाइन से, तो लेट्स नॉट ओवरलैप। प्रीवियस डे लो हो गया हमारा ये। अब ये हमारे पास एरिया है, ये हो गया आपके लेवल, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। हमेशा याद रखना डाउन ट्रेंड में हमें मार्केट के सपोर्ट को नहीं देखना है और अप ट्रेंड में रेजिस्टेंस को नहीं देखना है। फॉर एन एग्जांपल आई टेल यू, ये देखो यहाँ से जैसे इसमें मार्केट अप ट्रेंड है तो ये रेजिस्टेंस को हमें नहीं देखना, ठीक है। जब यहाँ पे ये डाउन ट्रेंड है तब ये सपोर्ट को नहीं देखना। अब ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, तो दिस इज नॉट द टेक्निकल एनालिसिस वीडियो। सो अगेन गाइज, I'm really disturbed by seeing all those things, so I would request you to so I've already explained all those things in my PPT. I'll share it with all of you, ठीक है। तो but yeah, be sensible while trading, don't, it's complete gambling, things are there। So on this note, I will try to close this video and you can see what's going on in the Twitter. You'll see there are so many person who lost their money and people are like there, Dada off chart। This is not trolling, this is where so innocent public can be saved। Just read his followers comment। Do you want to read it? नहीं यार, वो खुद ही कर लेना आप अपने आप। It's just that you should not be fall trap about that। जिस भी ट्रेड में आप 100% श्योर रहो ना, तो वो ट्रेड मत लो, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं। दैट इज कॉल्ड 100% श्योरिटी, ठीक है। चलो टेक केयर। एंड मैं अभी वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, इट्स जस्ट दैट कि आई हैव सम बिजी स्केड्यूल ड्यू टू माई वर्क एंड द ट्रेडिंग मार्केट कितनी वोलेटाइल है। एक चीज़ और बोलना था यार, थैंक यू, जब आप आ ही रहे हो तो चलो इस लेवल को, एक चीज़ ध्यान रखना कि वो जो रेंज ब्रेकआउट की ट्रेडिंग होती है ना, जब हमारा विक्स हाई रहे तो हमें रिवर्सल ट्रेड ढूंढना है। इस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, लेकिन हमेशा देखना इंडिया विक्स को ट्रैक करना। कभी भी आप अगर ये सोचोगे ना कि ये हायर हाई बना के ये देखो, ये अप ट्रेंड में ये हायर हाई बना के यहाँ से ब्रेकआउट देगा, तो वो नहीं होगा। एकदम सिंपल सा चीज है वो, ये इसको ब्रेक करके जाएगा भी, तो अगर यहाँ नहीं ब्रेक करेगा तो मान लो कि यहाँ पे भी इस रेंज को इसने ब्रेक करा था, इसने ब्रेकआउट दिया, इट्स यू टर्न। The easiest way to check it, look at the India VIX. If it's below 18, so you can take the breakout trade. If it's above 18, avoid breakout trade। और थोड़ा सा होमवर्क आप भी करो कि हिस्ट्री में जाके देखो कि इंडिया विक्स कैसा था, उस दिन मार्केट का मूवमेंट कैसा था, और जिस दिन इंडिया विक्स हाई रहे उस दिन आपके स्टॉप लॉस भी थोड़े हाई होंगे। हो सकता है आपका 100 रुपये का प्रीमियम 60 रुपीज़ पे आके वापस वो 150 पे चला जाए, तो उसमें थोड़ा सा स्टॉप लॉस ना डीप रखा करो, एंड उसमें ब्रेकआउट ट्रेड लो ही मत, टंटा ही खत्म करो। सो देयर आर फ्यू प्रो टिप्स, आई होप इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू। टेक केयर। सब्सक्राइब तो करते नहीं हो, कर दो प्लीज़। चलो टेक केयर, बाय।